یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو انسانیت کے رشتے کو فوقیت دی ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ بات برملا کہتے ہیں کہ ایس پی صاحب ہم آپ کی صلاحیتوں کے موظف بھی ہیں، باقی انسانیت کی صلاحیتوں سے بھی موظف ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ قطعاً نہیں ہے کہ کوئی ناحق وہ اس معاملے میں زیر بار ہو، لیکن جنہوں نے یہ درندگی کی ہے، جنہوں نے شر پسندی کی ہے، ان کے لیے کسی قسم کی وہ رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں اپنے ان عزیز بھائیوں سے، لوائقین سے دلی تعزیت کا بھی اظہار کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ کوئی مہذب شہری، کوئی ذمہ دار شہری آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس اقدام کی کوئی حمایت کر سکتا ہے۔ جہاں تک ہوا سارے لوگ آپ سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور آگ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں قانون پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ لیکن خدا را ایس پی صاحب، یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے سسٹم کے اندر جس سسٹم کا میں بھی حصہ ہوں، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، آج بدقسمتی سے ہمارے ریاست کے اندر دو قانون روا ہوتے ہیں۔ غریب کے لیے اور قانون ہوتا ہے، امیر کے لیے اور قانون ہوتا ہے، طاقتور کے لیے اور قانون ہوتا ہے، کمزور کے لیے اور قانون ہوتا ہے۔ لیکن جن معاشروں کے اندر جس شخص کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ انصاف ہوگا، تو پھر وہاں بندوقیں نہیں اٹھتی ہیں، وہاں خود جا کے لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جتنا جس نے کیا ہے اس کی اسے سزا ملے گی۔ میں ایک بار پھر دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے اس بھائی کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ ہم سب نے ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ الوائقین کے ساتھ انصاف ہوگا۔ سامعین محترم، کیونکہ محبوب ایڈوکیٹ صاحب نے ہم سب سے گزارش کی ہے، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5-7 منٹ کی بات ہے، اگر آپ برداشت کر سکیں تو ہم 1-2 مقررین کو اور موقع دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ہمارے ایس پی صاحب موجود ہیں، وہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ جو بات ایک میں اس مجمع میں ایس پی صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، بحیثیت دھرنا کا ایک شہری، کہ آپ کے تھانہ کوریٹا میں اس واقعے کی رپورٹ 3 دن پہلے جاتی ہے، دونوں فریقین کی درخواستیں وہاں پہ موجود ہیں۔ جناب ایس پی صاحب، آپ اپنے ایس ایچ او صاحب سے اور تھانہ سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ یہ 3-4 دن میں آپ کا جو ان کا معاملہ تھا وہ کیا پولیس نے حل کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی درد سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آئے دن ہمارے معاشرے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے دھرنے کا 5واں واقعہ ہے کہ نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں جو ہمارے معاشرے کے ذمہ دار سفید داڑھیوں والے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی عدم دلچسپی ہے کہ جب بیٹے گھر میں آتے ہیں تو ان کے پاس جو اسلحے لہرا رہے ہوتے ہیں تو باپ اور بڑے بھائی نہیں پوچھتے کہ بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو۔ اگر کسی کمزور کو تھپڑ رسید کر کے میرا اور آپ کا بھائی یا بیٹا آ جائے تو ہم اس کی پوچھ گچھ نہیں کرتے، اور بعد میں جب معاشرے میں اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں جناب ایس پی صاحب، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، تحصیل مفتی نکیال ہوں، میں آپ سے یہ درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تھانوں کے اندر بھی ہم چلے جائیں تو انصاف کے لیے ہمیں سورس چاہیے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں سے فون کروایا جائے اور فلاں کی سفارش نہ ہوئی تو ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ بحیثیت ایس پی بہت اچھے آدمی ہیں، ہم نے آپ کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، لیکن جناب والا ان کے جو نیچے جو کام ہو رہے ہیں اس پر آپ کو بھی نظر دلانی ہوگی۔ تو میرے خیال میں اہلیان دھرنا کی طرف سے جو میری بات ہے، یہی باتیں وہ ساری کریں گے، تو اگر مناسب سمجھیں تو آخری جو 5 منٹ ہیں یہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سے میں آپ سب لوگوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ خاصیت سپرڈنٹ پولیس میں یہ اپنا فیلئر صبر کرتا ہوں کہ میری حدود کے اندر
एक बेगुनाह इंसान का कत्ल हुआ। और मैं इस फोरम की वसादत से कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो आपसे नहीं करूँगा, लेकिन ये बात पूरे यकीन से आपको बावर करवाना चाहता हूँ और आपको महसूस करवाना चाहता हूँ कि उस मकतूल के मुल्ज़मान को इंशाअल्लाह कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊँगा। ये आपसे मेरा वादा है। और आप लोग देखेंगे कि इंशाअल्लाह उनमें से कोई बंदा भी, कोई मुल्ज़म भी ऐसा जिसने उस वाक़े में किसी तरह से भी कोई शरीक रहा हो, वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इंसाफ को मलूज़ खातर रख के चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करने की बात है, कुछ खराबियाँ हमें ज़रूर मौजूद होंगी। डेफिनेटली हम भी इंसान हैं, हमसे भी खताएँ होती हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूरे वसूख से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब जिरगों की बात करते हैं तो जिरगे में आप लोगों के पास वो अथॉरिटी ज़रूर होनी चाहिए, आप लोगों के पास उतनी ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि ताकि आप उस जिरगे में, उस सिस्टम में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उसको सिक्योर कर सकें, और सिक्योर करके आप उसको कंट्रोल कर सकें और अपने जिरगे को इम्प्लीमेंट करवा सकें। जिरगा बिलाशुबा एक बहुत बड़ी अहमियत का अमल इलाके में। हम सारे लोग कत्ल के बाद भी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट जिरगे की सूरत में होती हैं। आप सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं सारे, मैं आपकी तारीख से वाकिफ़ हूँ। लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी जो नौजवान जो लड़के जो इस बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं, ये कोई मेरे ख्याल में 5वां छठा वाक़ा है, कोई ये पहला वाक़ा नहीं है जिस तरीके से आप सब लोगों ने ये बातें की। और मेरे इल्म में भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों लड़कों से शायद 2 क्लाशिकों भी मैंने पकड़ी थी एक दफ़ा, मुझे याद नहीं कि इनमें से कोई है या इनसे कोई रिलेटिव लोग हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम ही लोग इनके सिफारशी होते हैं। अल्लाह अकबर। हम ही लोग सिफारशी होते हैं और हम ही लोग इनको फिश्ता बना के पुलिस के सामने पेश कर रहे होते हैं। प्लीज़ आप इस सारी बात को, आप सब लोगों ने यहाँ ऐड किया है कि आप मजलूम के साथ खड़े होंगे, और डेफिनेटली मैं आपको मजलूम के साथ खड़ा देखना चाहता हूँ। जहाँ तक बात की है आप लोगों ने कि थाने के अंदर एप्लीकेशन हुई और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसके लिए भी मैं जिम्मेदार उन जिम्मेदारों को ठहराऊंगा जिन्होंने जाके वहाँ बयान करना बंद करवा के दोनों फरीकों को एक अच्छी नीयत से लाया, यानी कि लड़ाई के लिए लाया। लेकिन यह है कि वो बेसिकली वो कार्रवाई जब सारे लोग चले गए, उन्होंने कहा जी हम इसको सेटल करना चाहते हैं आपके तौर पे बैठ के, तो पुलिस ने उनको टाइम दे दिया। अब पुलिस को तो ये इल्म नहीं था ना कि कल जिरगे में ही वहाँ पे कत्ल होना है, तो लिहाजा ये है कि छोटी मोटी जो कसूरवारी है हमने पहले चेक भी कर लिया है कि हमारी इसमें क्या नेग्लिजेंसी बनती है। मैंने पहले स्टार्ट में ये कहा कि हमारी भी तो कसूरवारी हो सकती है। मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूँ, मैं उसका मुल्ज़िम अपने आप को भी समझता हूँ। जो बंदा जो मासूम शहरी कत्ल हुआ, मेरी बासियत सुपरडेंट पुलिस ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका महफूज रहूँ, लेकिन वो मेरी इस हदूद के अंदर मर्डर हो गया और मैं उसका जिम्मेदार हूँ, और मैं उसका कर्ज उतारूंगा और इंशाअल्लाह उन सब मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाऊँगा और उसका कर्ज उतारूँगा माशाअल्लाह। एक दूसरी बात यह है कि मैं आप सब लोगों को गुजारिश करता हूँ कि एक छोटे से किसी वाक़े को एक तो बरादरियों में तकसीम ना करें। देखें, इंडिविजुअल 2 का फेल होता है, उनमें से किसी एक का किसी एक बरादरी से तल्लुक़ होता है, दूसरे का किसी दूसरी बरादरी से तल्लुक़ होता है। बरादरियों का काम हरगिज़ ये नहीं है कि वो उन लोगों के पीछे सबबंदी कर लें, उन लोगों के पीछे खड़े हो जाएं, और खड़े होकर तो फिर बरादरी की बुनियाद पे उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर लें। प्लीज़ चूँकि आइंदा आने वाली आपकी नस्लों में ये चीज़ें चूँकि ट्रैवल हो जाएंगी और आपकी नस्लें सारी बेचारे और लाचारी की ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये मेहरबानी करें कि कोई बंदा भी आप में से ये बात नोट कर लें, जिम्मेदार वही बंदा है जो इंसाफ और कानून के साथ खड़ा है। कानून अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। वो 1 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार होते हैं, वो 2 घंटे के अंदर होते हैं, वो 4 घंटे के अंदर होते हैं, हमारी एफर्ट आपको नजर आएगी। ठीक है, अगर रोड बंद करने से या एहतजाज करने से कोई चीज़ें आप ये समझते हैं कि हो जाती हैं, तो मैं भी आपके साथ अभी जाके खड़ा हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। काइंडली आप हमें टाइम ज़रूर दें। एक तो मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आज का जो आपका एहतजाज था या जो आपकी सोच थी या जिस तरीके से एक यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, आप लोगों ने मेरी बात पे इत्फाक किया। मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग एहतजाज न करें, हमें टाइम दें, हम अपने काम में मसरूफ़ हैं। आपके एहतजाज में हमारी पुलिस सारी डिवाइड हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारे साथ तावन किया, और हम इंशाल्लाह पूरे तावन की यकीन दानी करवाते हैं आपको, और अपनी एफर्ट से ये कामयाबी जो हमारी होगी वो आपके सामने होगी, और इंशाल्लाह इन मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एसपी साहब पे भरपूर एतमाद भी है, भरोसा भी है। ये ना किसी का प्रेशर लेते हैं, ये मेरिट पे काम करते हैं। लेकिन मैं आपकी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, जहाँ पे एसपी साहब पे प्रेशर आएगा, जहाँ पे इनके आगे रुकावटें आएंगी, इंशाअल्लाह बतौर राजा राजपूत
शादाब सिकंदर उसके आगे खड़ा होगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं, और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना हर महाज पे जंग भी करेंगे। और मुझे यकीन है बहुत जल्द ये जो मुलजमान हैं वो गिरफ्तार भी होंगे। और SP साहब और ज़िली इंतज़ामिया, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द अज जल्द इन मुलजमान को गिरफ्तार भी किया जाए और कोशिश की जाए कि इनको चालान ऐसा किया जाए कि ये कैसे गिरफ्तार तक पहुँचे, ताकि आइंदा कोई ऐसा अमल करने से पहले और पहुँचे। آمین